Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, today we will discuss one of the most interested question and one of the most asked interview question. So this question was asked in Flipkart for the senior BI role. So guys, we have one table which contains seat data like auditorium seat data, and the particular table what we have the seat number and the is empty flag. Right. So seat number is nothing. It's a seat numbers, like particular seat numbers, like n number of the seat numbers we have, right? And similarly, what we have with respect to the seat number, we have is empty flag. So is empty flag indicate either a seat is occupied by someone or seat is not occupied by someone. So if seat is occupied by someone, so is empty flag mark as n, otherwise it mark as y. So is empty flag is y in a particular seat for a particular seat, right? So guys, what we have to find? We have to find the three or more consecutive empty seat. So guys, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. इंटरव्यूअर यहाँ पर पूछ रहे हैं हमसे कि we have to find the three or more consecutive empty seat. So यार कुछ भी पूछ सकते हैं, like either the n number of the consecutive seats, or you can say that like 5 number, 6 number, 2 number of consecutive seat, right? So guys, we will solve this problem with the help of the different method. But I'm gonna tell you two very must method you have to know, that like how you can tackle the particular problem. The first one is the Aam Zindagi method. By the Aam Zindagi method, we will use the lag and lead functions, right? And the second one, you can say that the like Mentos Zindagi method. In the Mentos Zindagi method, we will use like the vendor entity function also, but the particular solution is feasible for all the use cases. So guys, solve karte hain with the help of the first method. So in the first uh, method first. So in first method, what we are using? We are using the lag and lead function. Correct. सो गाइज आपको पता ही है विंडोलिटी फंक्शन में हमारे पास लैग एंड लीड फंक्शंस भी होते हैं. करेक्ट. सो बेसिकली लैग लैग का मीन्स क्या होता है कि वो प्रीवियस रो दे देता है हमें फॉर एक पर्टिकुलर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट रो में हूँ, अगर मैं प्रीवियस रो पूछूंगा विद द हेल्प ऑफ द लैग फंक्शन, सो क्या करेगा वो नल दे देगा क्योंकि कोई प्रीवियस रो है नहीं हमारे पास. सिमिलरली लीड फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट रो दे देता है. अगर मैं फर्स्ट रो पे हूँ, अगर मैं नेक्स्ट रो मांगूंगा तो मेरे को 2 दे देगा. करेक्ट. लीड फंक्शन. So with the help of lag and lead function, we can achieve this solution also, right? So वही चीज हम करते हैं यार guys यहाँ पर. First I select star from seat table. Correct. So guys, हमारा एम यहाँ पर क्या है? हमारा एम है यार यहाँ पर कि हमें ना 3 consecutive seat find करनी है. So consecutive seat in the sense 3 consecutive empty seat we have to find. राइट. सो कंसेक्यूटिव सीट्स क्या होती है? अब यहाँ पर अगर हम डेटा देखें यार यहाँ पर, सो 1 इज n, 2 इज y एंड 3 इज n. तो यार ये तो हो ही नहीं सकता, कंसेक्यूटिव सीट नहीं है ये, क्योंकि इज एम्प्टी कंसेक्यूटिव सीट हमें फाइंड करनी है. बट यहाँ पर देखो यार, सीट 1 भी ऑक्यूपाइड है और सीट 3 भी ऑक्यूपाइड है, ओनली सीट 2 इज नॉट ऑक्यूपाइड. तो ये चीज, ये कंसेक्यूटिव तो है ही नहीं, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लाइक जो हमारे simultaneous number होते हैं, like 1 2 3 4 5 6 and like any numbers, right? Then similarly what we have the 4 5 6 7. Correct. But we can see that 4 5 6, these are the 3 consecutive seat which are empty. Correct. Which are empty because यहाँ पर हमारे पास flag क्या है, y flag है. So seat number 4 5 6 are is empty flag is there as a y. Correct. So these are the 3 consecutive empty seat there. Correct. क्योंकि यहाँ पर इन तीनों सीटों पे कोई नहीं बैठा, तो हमारे आउटपुट में ये भी आना चाहिए यार. सिमिलरली 7 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नॉन कंसेक्यूटिव इज एम्प्टी सीट है और यहाँ पर ऑक्यूपाइड है. करेक्ट. सो 8 में देखो यार, यहाँ पर 8 में देखो 8 9 10 एंड 11. सो दीज 4 ऑल्सो आर द इज एम्प्टी फ्लैग इज वाई. करेक्ट. सो यार यहाँ पर कोई बैठा नहीं हुआ है, ये सीट ऑक्यूपाइड नहीं है, और ये 3 कंसेक्यूटिव सीट है हमारी, 3 एंड मोर कंसेक्यूटिव सीट, लाइक मिनिमम 3 होना चाहिए और ज्यादा कितनी भी हो सकती है. करेक्ट. सो यार ये भी हमारे आउटपुट में होनी चाहिए. करेक्ट. क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है. सो वी हैव टोटल you can say like 7 seat, like 4 5 6 and 8 9 10 11 are the 3 consecutive seats. Sorry, these are the 3 and more consecutive seats according to our input. Correct. So यार यही चीज हमें फाइंड करनी है. So what I'm going to write here,
सो अगर मैं एक चीज करूं यार यहाँ पर leg ऑफ is empty flag and the row started from the first row. यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहली बार. सो ओवर order by seat number. करेक्ट. सो इससे क्या आएगा यार, मेरी फर्स्ट प्रीवियस रो आ जाएगी. फर्स्ट प्रीवियस रो प्रीवियस सीट आ जाएगी हमारे पास. फर्स्ट प्रीवियस सीट नंबर सीट आ जाएगा हमारे पास. करेक्ट. देन सिमिलरली यार अगर मैं यहां पर leg of is empty flag and starting from the second row, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो सेकंड रो मींस कि यार वो हमें is empty flag सेकंड प्रीवियस रो दे देगा यार हमें, क्योंकि हम यहां से सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं. करेक्ट. देन व्हाट आई एम डूइंग हियर, सिमिलरली यार मैं लीड फाइंड करूंगा कि लीड में मेरे को ना नेक्स्ट रो चाहिए और सेकंड नेक्स्ट रो भी चाहिए. करेक्ट. सो सेकंड it's a first, you can say the first next seat, and similarly what we have to find, we have to find the second next seat also. Correct. Second next seat also. Okay, from seat. See guys, अगर हम यहाँ पर देखिए तो क्या हुआ है हमारे पास, यहाँ पर मैंने leg and lead फंक्शन का यूज किया है यार सिंपली यहाँ पर. सो फॉर सीट नंबर 1 हमारे पास इज एम्प्टी फ्लैग n था. अगर मैं यार फर्स्ट प्रीवियस सीट फाइंड करूं विद द हेल्प ऑफ द leg फंक्शन, करेक्ट, leg इन्वेलेंटिक फंक्शन, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सीट नंबर, मैं फर्स्ट प्रीवियस सीट फाइंड कर रहा हूँ. तो यार फर्स्ट रो में फर्स्ट प्रीवियस सीट तो कुछ होएगी नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पर नल आया है. सिमिलरली सेकंड प्रीवियस सीट में भी नल आएगा, बट आई हैव टू फाइंड हियर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फॉर अ पर्टिकुलर सीट नंबर मैं फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट नेक्स्ट सीट. सो फर्स्ट नेक्स्ट सीट क्या होगी हमारे पास, दिस वन. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर y आया है. करेक्ट. क्योंकि अगर फर्स्ट नेक्स्ट सीट तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ ना, दैट्स व्हाई यहाँ पर y आया है. देन सेकंड नेक्स्ट सीट, सो फर्स्ट नेक्स्ट सीट इज दिस वन एंड द सेकंड नेक्स्ट सीट इज दिस वन. करेक्ट. सो इसलिए यहाँ पर n आया है. सो यार विद द हेल्प ऑफ द leg and lead function we will create 3, you can say 4 new flag, first previous seat, second previous seat, first next seat and the second next seat. सिमिलरली यार अगर वो सेकंड रो पे होगा, करेक्ट. सो आप यहां पर देखो यार, इज एम्प्टी फ्लैग n था, उसने एक प्रीवियस दे दिया जो कि n था. सिमिलरली उससे प्रीवियस हमारे पास कुछ था नहीं तो वहां पर नल आ गया. देन सिमिलरली फर्स्ट नेक्स्ट सीट एंड सेकंड नेक्स्ट सीट आ गया. अब हमारी कंसेक्यूटिव सीट थी यार 4 5 6. करेक्ट. 4 5 6 हमारी कंसेक्यूटिव सीट थी. सो अगर गाइस अगर हम यहाँ पर देखें, सो इज एम्प्टी फ्लैग इज y एंड वन प्रीवियस सीट इज n and second previous is y and one next seat is y and second next seat is y. correct. so मैं क्या करता हूँ ना, इस पर्टिकुलर जो हमने टेबल बनाई है अभी विद द हेल्प ऑफ द leg and lead फंक्शन, मैं इसको एक ct बना देता हूँ सो दैट कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट आई कैन फेच द डेटा बिलो. करेक्ट. सो select star from ct1. करेक्ट. सो गाइज हमारे पास हमें निकालना है 3 एंड मोर कंसेक्यूटिव सीट्स. सो मिनिमम 3 कंसेक्यूटिव सीट होनी चाहिए, एम्प्टी सीट होनी चाहिए 3 कंसेक्यूटिव सीट, और ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 3 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 होना चाहिए. सो यार मैं यहाँ पर एक वेयर कंडीशन पुट कर रहा हूँ बिकॉज हमने फ्लैग तो बना लिया. अब मैं यार वेयर कंडीशन पुट कर रहा हूँ, आप यहाँ से ध्यान से देखना यार कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा इज एम्प्टी फ्लैग है, इज एम्प्टी फ्लैग अगर y है, क्योंकि हमें तो y का ही देखना था ना कि जोन सी सीट एम्प्टी पड़ी हुई है. करेक्ट. एंड प्रीवियस सीट इज आल्सो y. करेक्ट. प्रीवियस सीट इज आल्सो y. करेक्ट. एंड it's a first previous seat and the second previous seat is also y. सेकंड प्रीवियस सीट इज ऑल्सो y. मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारी इज एम्प्टी सीट है फॉर अ पर्टिकुलर सीट नंबर, अगर वो भी y है,
मतलब वो भी एम्प्टी है, और उससे उससे एक पीछे वाली भी एम्प्टी है, लाइक फर्स्ट प्रीवियस सीट इज एम्प्टी है, और उससे सेकंड प्रीवियस सीट इज एम्प्टी ऑल्सो। अगर वो तीनों सीट एम्प्टी है, क्योंकि हमें तो आउटपुट में चाहिए ना, तो 3 कंसेक्यूटिव सीट हो गया यार सिमिलरली, करेक्ट, क्योंकि अब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं 3 कंसेक्यूटिव सीट, तो इजिली हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, करेक्ट। एंड एक तो यार हमारे पास ये केस हो गया कि या तो करंट सीट जो है हमारी इज एम्प्टी फ्लैग वो वाई हो, या पीछे की दोनों वाई हो, या तो ये कंडीशन हो हमारे पास, और व्हाट वी हैव, आई जस्ट कॉपी दिस वन, आई जस्ट कॉपी दिस वन। सो सेकंड चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए कि इज एम्प्टी वाई हो, या हमारे पास वन प्रीवियस सीट इज वाई हो, ठीक है। बट सेकंड केस क्या हो जाएगा कि लेट्स सपोज करो हमारे पास जो फर्स्ट नेक्स्ट सीट है, अगर वो भी वाई हो, तो यार वो भी हमारी 3 कंसेक्यूटिव सीट में हमारी लाई करेगा, बिकॉज हम पहले केस में क्या कर चुके हैं कि हम दोनों प्रीवियस सीट को कंपेयर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द करंट एम्प्टी फ्लैग, करेक्ट। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, करंट एम्प्टी फ्लैग से कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट प्रीवियस सीट एंड द नेक्स्ट अपकमिंग सीट, लाइक यू कैन से द फर्स्ट नेक्स्ट सीट। देन we have one more also case here. Let me copy this one. So guys, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि is empty seat हमारी y होनी चाहिए, लाइक करंट अगर कोई पर्टिकुलर रो में हमारा कर्सर, सो is empty y होनी चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए यार, या तो जो फर्स्ट नेक्स्ट सीट है आफ्टर दिस सीट, जो फर्स्ट नेक्स्ट सीट है, या तो वो वाई होनी चाहिए, एंड या फिर हमारे पास सेकंड नेक्स्ट सीट है, या तो वो वाई होनी चाहिए। फर्स्ट केस में हमने यार दोनों प्रीवियस के केस फॉलो करे, देन हम थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, दोनों नेक्स्ट के केस फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों केस हमारे किसी भी चीज में फॉलो होते हैं, तो हमारी वो पर्टिकुलर सीट नंबर 3 और मोर कंसेक्यूटिव में लाई करेगा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाऊं तो हमारा आउटपुट आ जाएगा यार हमारे पास। सी गाइस, अब हमें क्या चाहिए था, सी 4 5 6, क्योंकि हमारी यही 3 कंसेक्यूटिव सीट थी ना यार कि 4 5 6 एंड 8 9 10। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। सी गाइस, हमारे पास ये टेबल थी, और इस टेबल में इज एम्प्टी विद रिस्पेक्ट टू द इज एम्प्टी फ्लैग 3 और मोर कंसेक्यूटिव सीट कौन सी थी हमारे पास, लाइक सीट लाइक 4 5 6, बिकॉज यहाँ पर इज एम्प्टी फ्लैग y था, करेक्ट। एंड सिमिलरली हमारे पास 3 और मोर कंसेक्यूटिव एम्प्टी सीट कौन सी थी, 8 9 10 11। सो 4 5 6 8 9 10 11, टोटल वी हैव लाइक 7 कंसेक्यूटिव सीट्स, करेक्ट। तो ये 7 सीट नंबर हमारे आउटपुट में आना चाहिए। अब यार ये देखो, हमारे पास यही तो आ रहा है 4 5 6 8 9 10 11। सो गाइस, ये चीजें हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लैग एंड लीड फंक्शन, जो कि हमने किया। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट यार इस सॉल्यूशन में ना एक चीज की खराबी है, आपकी आउटपुट तो सही आ जाएगी, बट आप यहाँ पर देख रहे हो, लेट्स सपोज करो यार इंटरव्यूअर अगर आपको ऐसे बोल देते हैं कि यू हैव टू फाइंड द like 4 consecutive seats, 4 and more consecutive seats, and 5 and more consecutive seats, and 2 and more consecutive seats, then what you have to do, because यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो यार कि हम यहाँ पर ना हार्ड कोडेड यूज कर रहे हैं, हार्ड कोडेड अपना यूज केस बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू यूज केस, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूं यार कि आपको ना हमें 4 कंसेक्यूटिव सीट चाहिए, तो आपको यार वन प्रीवियस थर्ड प्रीवियस और देखना पड़ेगा, और थर्ड नेक्स्ट और देखना पड़ेगा। सो हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है। अगर हमारा यूज केस चेंज हो गया ना, तो उस पर्टिकुलर यूज केस पे हमारा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। सो दैट शुड बी द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द लैग एंड लीड फंक्शन आल्सो, करेक्ट। सो यार गाइस, हमें एक फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, कि क्योंकि इंटरव्यूअर चाहते हैं कि आपका सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन हो कि एवरी यूज केस पे फॉलो करे। सो हम जो यार सेकंड मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे, सेकंड मेथड हम यहाँ पर अभी सोल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द सेकंड मेथड। पर सेकंड मेथड काफी इजी भी है और काफी ट्रिकी भी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ना, सेकंड मेथड किसी भी पर्टिकुलर, यू कैन से दैट, किसी भी पर्टिकुलर एन नंबर ऑफ यूज केस पे काम करेगा। अगर इंटरव्यू बोलेंगे ना एन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव सीट निकालनी है, तो एवरी कंसेक्यूटिव सीट पे काम करेगा, एवरी एन नंबर्स पे वो काम करेगा, आइदर 4 3 5 2 कुछ भी हो। सो लेट्स सोल्व दिस पर्टिकुलर
सॉल्यूशन, करेक्ट। सो गाइस हम क्या करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीट्स, करेक्ट। वी हैव दिस टेबल, वी हैव दिस टेबल। देन हमें पता ही यार हमारी इज एम्प्टी फ्लैग वेयर मेंशन इज वाई, हमें वहां पर क्या कहते हैं 3 एंड मोर कंसेक्यूटिव फ्लैग निकालना था। तो मैं यहाँ पर ना एक कंडीशन पुट कर रहा हूँ, वेयर इज एम्प्टी फ्लैग इज वाई, बिकॉज यार हमें तो वही कंसेक्यूटिव सीट चाहिए ना जहां पर इज एम्प्टी फ्लैग वाई हो, मतलब कि जहां पर सीट हमारी ऑक्यूपाइड नहीं हो, करेक्ट। यही चीज हमें चाहिए अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो इसलिए मैंने यार यही फिल्टर लगा दिया कि हमें सिर्फ यही सीट पे कंपेयर करना है, हमें यही सीट पे इज एम्प्टी फ्लैग निकालना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हेयर, अगर मैं यहाँ पर हमारे पास सीट नंबर है एंड इज एम्प्टी है, व्हाट आई एम गोइंग टू हेयर, सो मैं एक यहाँ पर फ्लैग बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द रो नंबर। मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमारे पास एक पर्टिकुलर बेस है विद रिस्पेक्ट टू इज एम्प्टी फ्लैग इज वाई, करेक्ट। अगर मैं सीट नंबर ऑर्डर बाय सीट नंबर पे अगर रो नंबर बना देता हूँ, एक नया फ्लैग बना देता हूँ, ऑर्डर बाय सीट नंबर, ये हमारा यार नया फ्लैग बन गया, करेक्ट, एस आर एन फ्लैग। अगर मैं इसको रन करता हूँ अब यहाँ पर, सो गाइस ये देखो हमारे पास सीट नंबर 2 था, वहां पर फ्लैग 1 बन गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सीट नंबर आई एम क्रिएटिंग द न्यू फ्लैग, करेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू द इज एम्प्टी फ्लैग इज वाई, बिकॉज हमें इज एम्प्टी फ्लैग वाई में ही कंपेयर करना है, वाई में ही फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कंसेक्यूटिव सीट लाइक 3 और मोर कंसेक्यूटिव सीट विद रिस्पेक्ट टू द इज एम्प्टी फ्लैग वाई कौन सी है, करेक्ट। अगर मैं गाइज यहाँ पर एक चीज कर दूं, आप ये चीज सोचो, अब हमारे पास यहाँ पर कंसेक्यूटिव सीट्स कौन सी है, 4 5 6, करेक्ट, क्योंकि दीज आर द कंसेक्यूटिव सीट्स 4 5 6, बिकॉज यहाँ पर देखो कंसेक्यूटिव नंबर है हमारे पास 4 5 6। सिमिलरली व्हाट वी हैव, सो हियर व्हाट वी हैव 8 9 10 11, बिकॉज यार हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर है ना 8 9 10 11, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 8 9 10 11 तो है हमारे पास, देन सिमिलरली हमारे पास इज एम्प्टी फ्लैग भी वाई है, करेक्ट गाइस। तो हमें ये चीज पर्टिकुलर आउटपुट में चाहिए। अगर मैं गाइस यहाँ पर एक चीज कर देता हूँ, लेट मी डू वन थिंग, कि जो हमारी सीट नंबर है, सीट नंबर, अगर यार मैं सब्सट्रैक्शन कर देता हूँ सीट नंबर का, जो हमारा आर एन फ्लैग है, जो हमने अभी क्रिएट किया है आर एन फ्लैग, अगर मैं सीट आईडी उस पर्टिकुलर फ्लैग में से माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो, अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ, करेक्ट। सो गाइस मैं पहले यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो गाइस कि आपको ना अच्छे से क्लियर हो, करेक्ट। सो व्हाट आई एम गोना राइट हियर, ठीक है, ओके। सो गाइस मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सीट नंबर को आर एन फ्लैग से, करेक्ट। सो 2 minus 1 is 1, 4 minus 2 2, 5 minus 3 2, 6 minus 4 is 2। सो गाइस हमारी यहाँ पर कंसेक्यूटिव सीट कौन सी थी, 4 5 6, करेक्ट। सो अगर मैं यार अपनी कंसेक्यूटिव सीट्स का सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ सीट नंबर विद रिस्पेक्ट टू द आर एन फ्लैग, सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यार हमारा जो सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, वो यार सेम आ रहा है कंसेक्यूटिव सीट के लिए, करेक्ट। अब देखो हमारे पास 4 5 6 जो हमारी सीट थी वो सेम आ रही है यार यहाँ पर, लाइक 2 2 2। सिमिलरली हमारे पास कंसेक्यूटिव सीट थी 8 9 10 11, यहाँ भी यार हमारी सेम नंबर आ रही है 3 3 3, हमारा सब्सट्रैक्शन करने के बाद सेम रिजल्ट आ रहा है सब कंसेक्यूटिव सीट का। तो यार अब इजीली हम चीज को फाइंड कर सकते हैं कि हमारी दीज आर द कंसेक्यूटिव सीट। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सिनेरियो टिल येट। सो लेकिन यार यहाँ पर ना एक इशू भी हो सकता है, लेट्स सपोज करो अगर हम यहाँ पर ये चीजें देखें, लाइक सीट नंबर 13 एंड 14, वी हैव 2 कंसेक्यूटिव सीट। अब यहाँ पर देखो यार जो हमारा, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ एज सब्सट्रैक्शन में मार्क कर देता हूँ यार इसको, करेक्ट। अगर मैं अब इसको रन करूं, सी गाइस, सो सीट नंबर यहां तक तो हमें पता लग गया कि हमारी जो कंसेक्यूटिव सीट होता है ना उसका, अगर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सीट नंबर एंड आर एन फ्लैग, तो सेम रिजल्ट आ रहा है हमारा, सेम नंबर आ रहा है, करेक्ट। बट यार हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 एंड मोर कंसेक्यूटिव सीट्स, करेक्ट। 3 एंड मोर कंसेक्यूटिव एम्प्टी सीट चाहिए। बट यहाँ पर देखो यार हमारे पास क्या है 13 एंड 14,
दीज आर द 2 कंसेक्यूटिव सीट एंड सब्सट्रैक्शन भी सेम है यार हमारा, बट अब हमें फिल्टर कंडीशन पुट करनी पड़ेगी ना कि सीट शुड बी 3 एंड मोर कंसेक्यूटिव। हमारे पास 2 नहीं आनी चाहिए, ये हमारे आउटपुट में नहीं आना चाहिए। सो हमें इसको फिल्टर आउट करना है। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, select स्टार फ्रॉम CT1। अगर यार मेरे को ये फिल्टर आउट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि मैं काउंट निकाल सकता हूँ अपना विद रिस्पेक्ट टू द सम्स, कंसेक्यूटिव काउंट निकाल सकता हूँ कि कितनी कंसेक्यूटिव सीट हमारे पास पर्टिकुलर है, सो दैट कि मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि हमें 3 कंसेक्यूटिव सीट चाहिए थी, तो मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि काउंट शुड बी ग्रेटर देन 3। करेक्ट। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, काउंट स्टार ओवर पार्टीशन बाय सब्स। अगर मैं पार्टीशन बाय सब्स कर देता हूँ यार यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एक सब्स नाम का फ्लैग है यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शन किया आया है, अगर मैं पार्टीशन बाय करता हूँ तो ग्रुप बाय हो जाएगा यार यहाँ पर। सो अगर मैं पार्टीशन बाय करता हूँ तो इनका काउंट कितना आ जाएगा, 3। सिमिलरली अगर मैं पार्टीशन बाय का करता हूँ तो 1 आएगा काउंट। देन सिमिलरली अगर मैं 3 का पार्टीशन बाय करता हूँ तो हमारे पास 4 काउंट आ जाएगा। देन 4 का मैं पार्टीशन बाय करता हूँ तो हमारे पास 2 आ जाएगा। करेक्ट, एज सीएंट मतलब काउंट। लेट मी रन दिस। सी गाइस, अब मेरे पास क्या आ गया है यहाँ पर, मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास काउंट आ गया विद रिस्पेक्ट टू द सब्स। अब मेरे को मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ 3 एंड मोर कंसेक्यूटिव सीट्स। अब मैं इसको फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि हमें ये अपने आउटपुट में नहीं चाहिए। सो मैं इसको एक नया सीटी बना लेता हूँ, CT2 एज select स्टार फ्रॉम CT2 where CNT is greater than and equal to 3। करेक्ट, सो दैट 3 एंड मोर कंसेक्यूटिव सीट हम इजीली निकाल सकते हैं। सी गाइस, हमारे पास हमारा रिकॉर्ड्स आ गया, लाइक सीट 4 5 6 एंड 8 9 10 11, दीज आर द 3 एंड मोर कंसेक्यूटिव सीट इन अवर इनपुट टेबल। करेक्ट, यही चीज हमें चाहिए थी यार। और गाइस आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो कि आप n नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव सीट भी कर सकते हो। लेट्स सपोज करो अगर वो बोले 2 एंड मोर कंसेक्यूटिव सीट, तो यार यहाँ पर 2 पुट कर दो। करेक्ट, या n नंबर ऑफ चाहिए तो n पुट कर दो, n नंबर ऊपर वेरिएबल हो जाएगा हमारा जो कि यार चेंज होता रहेगा। सो गाइस होप यू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है यार और हमारे हर यूज केस में ये काम करेगा, काफी फिजिबल सॉल्यूशन है। बस यहाँ पर यार आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ना पर्टिकुलर सिनेरियो याद रखना है कि आपको सीट नंबर से ऐसे माइनस करके एक नया फ्लैग क्रिएट करना है और एवरी कंसेक्यूटिव जो सीट होती है हमारा सब्सट्रैक्शन सेम आता है उसमें। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सिनेरियो। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यार आपको ना मल्टीपल सीटी भी हैंडल करना आप यहाँ पर सीख जाओगे, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके और मल्टीपल सीटी में डिवाइड करके देन मैंने सोल्व किया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। सो गाइस हमने यहाँ पर 2 मेथड सोल्व किया है, विद 2 मेथड से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व किया है। फर्स्ट वन इज द लैग एंड लीड फंक्शन, मैंने डिसएडवांटेज भी बताई उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। देन सेकंड वी हैव द लाइक यू कैन से लाइक मेंटोस जिंदगी मेथड, और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हर यूज केस पे फिजिबल होगा यार, हर पर्टिकुलर यूज केस पे सॉल्यूशन काम करेगा हमारा। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सिनेरियो एंड होप यू गाइस अंडरस्टैंड द बोथ ऑफ द अप्रोचेस। बाकी सब सॉर्टेड है यार, जस्ट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि यार इसी चीज से मेरे को मोटिवेट मिलेगा और ऐसी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्यूशन हमारे पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे और आपको ऐसी रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स पे ना हैंड्स ऑन करने को मिलेगा यार। जस्ट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।